بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 42 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام اقساط بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ تمہاری زندگی کے حالات غیر فطری ہیں، ڈاکٹر رضا حسین نے نادیہ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ غیر فطری ہوتے تو تم آج اس مقام پر نہ ہوتی جہاں کھڑی ہو کر مجھ سے مخاطب ہو۔ وہ اس رد عمل کا نتیجہ ہے جو میں نے غیر فطری حالات پر اپنایا اور اس کی تقلید کی۔ منصوبے بنانا اور منصوبوں پر عمل کرنا تو انسان کے اپنے اختیار میں ہی ہوتا ہے۔ چلو فرض کرتے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ڈاکٹر رضا نے اپنی میز پر رکھی ایک کتاب کا ذرا سا اکھڑا ہوا کونا درست کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر اس سوال کا ممکنہ جواب کیا ہوگا کہ منصوبے بنا کر تم نے کہاں سے سیکھا؟ ایک منفی عمل کا رد عمل مثبت ہو تو بھی یہ سوال تو ذہن میں آنا چاہیے نا کہ منفی عمل اور منفی سوچ کے درمیان رہنے والا شخص مثبت ہوا تو کیسے ہوا؟ تمہارے بقول تمہاری والدہ کی شخصیت منفی تھی، تمہارے والد کا قول و عمل تمہارے حق میں منفی ثابت ہوا۔ تمہارے بچپن سے لے کر اس وقت تک کے حالات جب تم نے ان سے فرار حاصل کرنے کی ٹھانی، سب کا سب منفی تھا۔ پھر تم مزید منفی سوچنے کے بجائے مثبت کیسے ہو گئیں؟ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا تمہارے ارد گرد جس نے تمہیں یہ مشورہ دیا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ انسان کے پاس اپنا دماغ بھی تو ہوتا ہے نا؟ نادیہ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً، مگر دماغ تو اپنے ارد گرد کہی سنی باتوں سے ہی نقوش لیتا ہے۔ ڈاکٹر رضا نے سر ہلایا۔ پھر نادیہ نے اپنی کرسی پر سیدھے ہوتے ہوئے اپنا کوٹ درست کیا۔ آپ بتائیں کہ حقیقت کیا ہے؟ آپ وہ بتائیں جو آپ اس بات سے مجھے سمجھانا چاہتے ہیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہیں خود کچھ بتانا نہیں چاہتا، میں فی الحال صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے سبق آپ پڑھو۔ زندگی کتاب میں کسی سوال کا حل اس صفحے پر درج ہے، میں صرف صفحہ نمبر کی نشاندہی کر سکتا ہوں تمہارے لیے، باقی کا کام تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ تو نادیہ نے ابرو چڑھا کر سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ تو یہ کہ آج واپس جا کر غور کرنا کہ کیا تمہارے ارد گرد کچھ ایسا تھا جس نے تمہیں مثبت اور منفی میں تفریق کرنا سکھائی، اور پھر تمہیں اپنا راستہ خود انتخاب کرنے کا شعور دیا۔ اگر اس سوال کا جواب سمجھ میں آ جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ وہ مسکرا کر بولے۔ ان چھوٹی چھوٹی گتھیوں کو سلجھاتے تو میرا یہ فارغ وقت یوں ہی گزر جائے گا۔ نادیہ نے شکوہ بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم ہی نقطہ آغاز ثابت ہوتے ہیں، ابتدا میں ہی بڑا قدم اٹھانے کی کوشش کرو گی تو گر جاؤ گی۔ وہ ایک بار پھر نرمی سے مسکرا کر بولے، یہ مت بھولنا کہ فن لینڈ سے انگلینڈ تک کی ہجرت تم نے یوں ہی نہیں کی۔ آپ کی باتیں بظاہر بالکل معمولی محسوس ہوتی ہیں، لیکن ہوتی وہ دراصل غیر معمولی ہیں، اور غیر معمولی ہونے کا یہ احساس ہی مجھے باور کراتا ہے کہ میں غلط جگہ پر نہیں آئی۔ نادیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خود کو ابھی وقت دو۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا پیپر ویٹ گھماتے ہوئے کہا۔ فوراً فیصلہ مت کر لو کہ کیا معمولی ہے کیا غیر معمولی، اور یہ کہ تم درست جگہ پر آئی ہو یا غلط جگہ پر۔ چلیں ٹھیک ہے، نادیہ نے سر ہلا کر کہا، جب سمجھ میں آ جائے گا دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی۔ کسی مذہب کی تقلید کرنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تب ہوتا ہے جب انسان کو اپنے لیے خود فیصلہ کرنا پڑے کہ اگر وہ کسی عالمی ضابطہ حیات سے منسلک ہونا چاہتا ہے تو ضابطہ حیات کون سا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی ایک مذہب کی تقلید کرنے والے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اسی کے زیر اثر پیدا شدہ ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اسی ضابطہ حیات کی صحیح اور غلط اور رسومات پر عمل کرتے کرتے اپنی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کارزار حیات کا کم از کم ایک پہلو تو ہوتا ہے جس میں انہیں اپنے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مسئلہ تو میرے جیسے لوگوں کے لیے ہے جنہیں اپنے لیے ایک ضابطہ حیات منتخب کرنا پڑتا ہے، اور بدقسمتی سے جو مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان زندگی گزارتے رہے ہوں۔ آنکھیں بند کر کے پرچی اٹھا لینے کا اصل انتخاب تو یہ ہے کہ اس میں نو منتخب کرنے والی کی آنکھیں اور کان دونوں ہی کھلے ہونے چاہیے۔ میں لندن میں ہوں جہاں مجھے اذان کی آواز سن کر سر ڈھانپ لینے والے بھی ملتے ہیں، مندروں میں بجتی گھنٹیاں سن کر شلوک پڑھنے والے بھی، ست سری اکال کرتے کیس اور کرپان کے مقلد بھی،
اپنے مردوں کو کھلے میدان میں چیل کووں کا شکار بن جانے کے لیے چھوڑ دینے والے آتش پرست بھی اور صلیب کا نشان سینوں پر بنا کر خدا کا کرم مانگنے والے عیسائی بھی، یہاں کیسری آباد کے پہنے سر منڈوائے جمبو کرتے بدھ بھی، اور داؤدی ستارے کو مقدس جاننے والے بھی، اور وہ بھی ہیں جو کسی الماحی یا غیر الہامی مذہب یا نظریے کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ اب جہاں انتخاب کے لیے ترجیحات کا ایسا رنگا رنگ مجموعہ سامنے ہو، وہاں انسان کی آنکھیں کھلی نہ ہوں اور کان ٹھیک سے سنتے نہ ہوں تو کیا وہ اپنے لیے کوئی درست فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس شام اس نے شیکھر کی ایک لمبی میل میں لکھا تھا، فیصلہ تو تم کر چکی ہو نادیہ بلال، اب تو بس اس پر عمل درآمد کا مرحلہ درپیش ہے، لہٰذا مجھے تو ترجیحات کے رنگا رنگ نمجوئے کی کہانی نہ سناؤ۔ شیکھر شاید اس وقت آن لائن تھا جب اس کا فوری جواب آیا تھا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ شیکھر کا جواب پڑھ کر نادیہ نے خود سے پوچھا تھا، شاید ایسا ہی ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا جب ہی میں ڈاکٹر رضا حسین کے پاس پہنچی۔ کسی روی شیکھر یا ولیم سمتھ، کسی حرمزائے ہوائے یاہو کرم سنگھ کے پاس نہیں گئی۔ وہ سوچ کر خود ہی مسکرا دی، سچ تو یہ ہے کہ شیکھر ٹھیک کہتا تھا، میرے لاشعور میں بیٹھے تعصبات مجھے کسی اور سمت رخ موڑنے دے ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ سفید چاندنی پر گھٹنے موڑ کر بیٹھی تھی اور مبوہت ہو کر کھاری کی ساز کی آواز میں نعت سن رہی تھی۔ اس نے چند ہی محافل میلاد ذکر میں شرکت کی تھی، اور وہ محافل میں بھی بہت فیشنیبل طبقہ اول کے گھروں میں ہونے والی محافل تھی، جن میں محافل میں ہونے والی درس اور کچھ نعت پر کان دھر جانے سے زیادہ حاضرین محفل کے لباس، انداز اور نشست و برخاست پر نظر دھری جاتی تھی۔ یوں ہی پروگرام کے تمام نمٹے گویا زبانوں کے قفل کھل جاتے، باتیں قہقہے دوپٹے سروں سے اتار کر، ہیئر سٹائلز کی نمائش، لباس اور تنین کو سراہے جانے کا عمل شروع ہو جاتا۔ مگر تائی صابرہ کے گھر میں ہونے والی محفل میلاد ذکر میں سادگی تھی، اور درس سنے جانے کے دوران لرز کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روتے ہوئے فریاد کرنے والیوں کی کمی نہ تھی۔ تائی صابرہ کو بہت اصرار پر کبھی کھاری کے ساز نے درس نہیں دیا تھا۔ وہ نسازی طبع کا عذر کر کے ایک طرف ہی بیٹھی رہی تھی، لیکن نعت گوئی کی محفل کے دوران تائی صابرہ نے ان کا کوئی عذر نہیں سنا تھا، اور وہ حاضرین محفل کے درمیان بیٹھی آنکھیں بند کیے نعت گوئی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ نعت خواں کی آواز میں وہ کیا چیز ہوتی ہے جو لفظ سیدھے دل پر اثر کر جاتے ہیں، دل میں سکون اترتا ہے، اور اس عظیم ترین ہستی سے محبت میں سرشاری بھی عطا ہو جاتی ہے۔ آنسو آنکھوں سے خود بخود بہہ نکلتے ہیں۔ ماہنور کو ایسا لگا جیسے ایسی صاف شفاف آواز اس نے شاید ہی کبھی سنی ہو۔ الفاظ کا بھاؤ تھا اور جذبات کا عقیدت کا رچاؤ منہ سے لفظ موتیوں کی طرح جھڑ رہے تھے۔ اس نے نظریں گھماتے ہوئے اپنے ارد گرد بیٹھی ان پڑھ سادہ دیہاتی عورتوں کو دیکھا، ان سب پر بھی جیسے کھاری کی ساز کی آواز کا جادو طاری تھا۔ ان میں سے اکثر آنکھیں بند کے جھوم رہی تھیں، ان میں اکثر کو وہ الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے یا نہیں، لیکن ان کے لیے احساس ہی کافی تھا کہ الفاظ اس ہستی کے لیے کہے جا رہے ہیں جس کی ناموس پر وہ خود بھی کٹ مرنے کو تیار ہو سکتی ہیں اور اپنے بھائی بیٹے اور شوہر بھی کٹا سکتی ہیں۔ شاید اسی لیے اس کو عالم گیر مذہب کہا جاتا ہے، ماہنور نے سوچا۔ اس کے لیے نسل کی کوئی اہمیت نہیں، نہ رنگ کی، نہ جغرافیائی سرحدوں کی، بس عقیدہ ہے اور عقیدت ہے۔ اسے لگا جیسے اس محفل میں بیٹھ کر خود اسے پر بھی کئی دنوں سے چھائی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ عرق گلاب کا چھڑکاؤ، اس نے لمبا سانس لیتے ہوئے اس مخصوص خوشبو کو محسوس کیا۔ یقیناً خوشبوؤں کی اس استعمال کی کوئی منفی روایتی اور تاریخی وجہ ہوگی، یوں ہی تو ایسے ہی ہر ماحول میں ان کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ ان کا استعمال ماحول میں پاکیزگی کا ایک تاثر ابھرتا ہے اور دل اور ذہنوں کو ایک نفسیاتی سکون عطا کرتا ہے۔ اسے خیال آیا، آج کی جدید دنیا اروما تھراپی کے ذریعے جو طریقہ علاج کا شور مچا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا اوریجن یہی ہو۔ اسے یاد آیا، میری پیاری بہنوں، میں بالکل مختلف بات کرنا چاہوں گی۔ نعت خواں کی آواز بلند ہوئی، اور وہ یہ کہ دنیا کی تمام دولتوں سے اوپر سب سے بڑی دولت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کر رکھی ہے، اور جسے ہم باقی دنیاوی دولتوں کے حصول کی خاطر ہاتھوں سے گنوائے چلے جا رہے ہیں۔
وہ کہہ رہی تھی، میری بہنوں، وہ دولت سکون کی دولت ہے، لیکن دنیاوی چیزوں کی کشش کے پیچھے لگ کر ہم زندگی کی وہ سب سے بڑی دولت اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر ساز و سامان سے بھر جاتے ہیں، ہمارے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے چن جاتے ہیں، ہمارے لیے نئے لباسوں سے بھر جاتے ہیں، فرشوں پر قالین، کھڑکیوں پر پردے، بستروں پر آرام دہ گدے۔ ہم اپنی نظر اور جسم کے لیے خوبصورتی اور آسانیاں خریدنے کے لیے جائز اور ناجائز طریقوں سے اپنے بٹوے بھرتے ہیں اور بازاروں میں جا کر دکانوں پر کھڑے کھڑے خرچ کر دیتے ہیں۔ مرد ششماہی محنت کی کمائی فصل بیچ کر ہماری ہتھیلیوں پر رکھتے ہیں تو ہمارے من چاہے منصوبوں کی خریداری کی حد اس کمائی سے پہلے ہی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ مرد مقروض ہو جاتا ہے اور ہمارے دل کی حسرتیں اب بھی پوری نہیں ہوتی۔ کھاری کی ساز بول رہی تھی اور حاضرین میں بیٹھی خواتین میں سے اکثریت کم پڑھی لکھی بلکہ ان پڑھ سیدھی سادھی اور دیہاتی عورتیں تھیں۔ آنکھیں بند کیے بے شک سچ آکھیا ہے قسم کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ ہم جس ہستی کی یاد میں یہ محفل سجاتے ہیں، اس ہستی کی تعلیم یہ نہیں تھی۔ میری بہنوں، سادگی اور غنا، فقر اور توکل۔ کھاری کی ساز کی آنکھیں بھیگنے اور آواز بھرانے لگی۔ چار نکات کا ایجنٹا کانپتی آواز میں وہ مشکل بولی، اور ہماری زندگی میں اس ہستی کا صرف ذکر باقی رہنا جاتا ہے۔ ایک دم کر کے ہم نے اپنی خواہشوں کے ربڑوں سے مٹا دیے۔ ان کی مدح میں نعت کے لفظ وقتی تحسین، وقتی عقیدت ابھارتے ہیں، دل کی تسلی کی جاتی ہے۔ لو جی، ہم نے ذکر کر کے اپنے سیاہ کو سفید کر لیا، مگر کیا اس دربار میں ان کھوکھلی باتیں کرنے والوں کی شفاعت کی کوئی گنجائش بنے گی؟ کیا یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ ہم نے تو سیدھا سادہ سبق پڑھایا تھا، تمہیں وہ بھی یاد نہ رہا؟ ہائے میری بہنوں، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیویوں، میری تم سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر خواتین کے سامنے کیے۔ ان ماہانوں اور سانپوں اور بچھوؤں کی خریداری میں لپ لپاتی دھوپ کو روشنی جان کر ان کے تعاقب میں اپنی اصلی سچی دولت نہ گنواؤ۔ اپنے دل کے چین اور سکون کو اپنی مٹھیوں میں اس طرح سمیٹے رکھو کہ خواہش کے راہزن اور نفس کے ڈاکو ان پر حملہ کر کے انہیں اڑا نہ لے جائیں۔ ان چار نکات کے ایجنڈے کو سمجھو، اس کے رنگ اور روشنائی کو پھیلنے نہ دو۔ میری بہنوں، ایک وقت جلنے والا چولہا بھلا، ایک دھو یا ایک پہنا لباس بھلا، وہ دو کمروں کا سادہ گھر بھلا، اپنی باندیوں کو نت نئے پکوانوں سے بھر دینے کی خوش شوق میں، جسم کو ہر روز نئے لباس سے سجانے کی چاہ میں، سب سے بڑی دولت اپنا بہترین خزانہ لٹانے سے بچو۔ میری پیاری بہنوں، میری آپ سب سے بس یہی ایک درخواست ہے اور ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے ان کے آنسو تواتر سے بہنے لگے اور ان کے دونوں ہاتھ ایک بار پھر آپس میں جڑ کر ان کے سامنے تھے۔ محفل میں موجود خواتین نے الفاظ کی تاثیر میں کھو کر زار و قطار رونا شروع کر دیا اور چند خواتین عقیدت کے مارے کھاری کی ساز کے ہاتھ چومنے میں مصروف تھیں۔ وہ ہائے ہائے اور توبہ توبہ کرتی اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھیں، مگر خواتین تھیں کہ نہ ہاتھ چھوڑ رہی تھیں، نہ ان کی ٹانگیں جن سے وہ لپٹی جا رہی تھیں۔ نی پیچھے ہٹو نی، مولوانی جی کو پنکھے کی ہوا لگنے دو، کیوں ان کے اوپر چڑھی مری جا رہی ہو؟ تائی صاحب نے اٹھ کر شدت گریہ سے سرخ پڑتی ناک کو ہاتھ میں پکڑے رومال سے رگڑتے ہوئے کہا۔ کھاری کی ساز کی درخواست ان پر بھی اثر کر چکی تھی۔ ان کی آواز پر خواتین ذرا ذرا پیچھے کھسکیں، مگر اس طرح کے پیچھے کھسکنے پر بھی کھاری کی ساز کے قریب ہی رہ سکیں۔ نی رضیہ، نی سکینہ، چلو شربت پلاؤ پہلے سب کو اور باہر دانے میں اطلاع کر دو۔ محفل ختم ہو گئی، روٹی کھول دو، ادھر کھاری ہوگا باہر حویلی میں، اسے پیغام دو، بس باقی وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ وہ بلند آواز میں نہ جانے کس کس سے مخاطب تھیں۔ اپنا اعلان ختم کر کے واپس اونچے پیڑے پر بیٹھتے ہوئے گھٹنوں کے درد کے باعث وہ فرش پر نہیں بیٹھ سکتی تھیں۔ ان کی نظر ایک کونے میں سمٹا کر بیٹھی کھاری کی نئی نویلی دلہن پر پڑی۔ ہائے ہائے نی دھیرانی، انہوں نے بے اختیار کہا، تو ادھر ایک طرف الگ تھلگ کیوں بیٹھی ہے؟ چل ادھر آ، پنکھے تلے بیٹھ، آجا شاباش، ادھر آ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لڑکی کے ساتھ بیٹھی خاتون نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ ادھر بیٹھی خواتین کے درمیان کی تنگ جگہ پر بمشکل پاؤں جماتی پہلے وہ تائی صابرہ کے پاس پہنچی، جنہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا، اور پھر ذرا تیز قدم رکھتے اپنی والدہ کے پاس پہنچی۔ کھاری کی ساس آنکھیں بند کیے
दरूद पाक के वीड में मशगूल थी। अम्मा, खारी की दुल्हन ने माँ के घुटने पर सर रखा और रोने लगी। खारी की सास ने चौंक कर आंखें खोली। अम्मा, सारी उम्र आप कहाँ थीं? खारी की दुल्हन ने रोते रोते इसका चेहरा पकड़ कर कहा, मुझसे भी पर्दा किए रखा आपने, मेरी नज़रों से भी पोशीदा रहीं। खलकत को जो सबक आपने आज पढ़ाया, मेरी अली बे के साथ मुझे क्यों नहीं पढ़ाया? अम्मा, सारी उम्र आप कहाँ रहीं? अम्मा। खारी की दुल्हन के ये अल्फाज इस महफिल में बैठी किसी औरत की समझ में ना आए थे। वो हैरत से मुंह खोले, दांतों में उंगलियां दबाए, सरगोशियों में तबसरे करती इस अमल पर रद्द अमल जाहिर कर रही थी। मगर जो कुछ खारी की दुल्हन कह रही थी, इसे सिर्फ वह खुद या इसकी अम्मा ही समझ सकती थी। खलकत नहीं जान सकती थी कि अल्फाज के बयान और असर ने माँ और बेटी के दरमियान उम्र का फासला कितना कम कर दिया था। इसने गर्द आलू तारीख स्टूडियो में बल्ब का बटन दबाकर इसे रोशन किया। बल्ब पर भी यकीनन गर्द की एक तबीस तह मौजूद थी। जब इसकी रोशनी कमरे में मौजूद हर चीज़ को पूरी तरह रोशन करने के लिए नाकाफ़ी थी। इसने दरवाजे के करीब खड़े होकर कम रोशनी में कमरे का जायज़ा लिया। इसे इस पेंटिंग को ढूंढना था। इसका अनुमान मिडनाइट इन हेवन था। तायराना नज़र डालने पर इसे वो पेंटिंग नज़र नहीं आई। आगे बढ़कर इसने ऐन इस जगह पर चीज़ों को उलटना पलटना शुरू किया जहाँ वो पेंटिंग्स पिछली बार इसे दिखाई दी थी। ओह, इसके होंठ सिकुड़े। वो पेंटिंग अपनी जगह से गायब थी। इसका मतलब खातून यहाँ आती रहती हैं। इसके जहन में फ़ौरन ख्याल आया, हो सकता है ये महज मेरा ख्याल हो, देखना चाहिए मज़ीद। इसने कार्ड कबाड़ हटा हटा कर देखना शुरू किया। मुख्तलिफ छोटे छोटे औजारों जो गालिब मुजस्समा साजी के काम आते होंगे, फटे पुराने कागज़ों और अखबारात के अंबारों तले इसके हाथ ने एक नरम कपड़े को जा छुआ। एक ऊंची मेज़ के पीछे पीछे इस कार्ड कबाड़ तक बल्ब की रोशनी तकरीबन ना होने के बराबर थी। इसने बच्चू हाथ मारकर इस कप्पे को दोबारा छूना चाहा, जिससे लम्हा पहले इसका हाथ मिस हुआ था। उफ, अगले लम्हे से तड़प कर पीछे हटना पड़ा। इसका हाथ किसी तेज धार चीज से जा टकराया था। उसके अंगूठे के नीचे कलाई और हथेली के दरमियान एक लंबा कट आ चुका था। पतला सुर्ख खून तेजी से बहने लगा। इसने किसी ऐसी चीज की तलाश में दाएं बाएं देखा जिसको बहने वाले खून के मंबा पर रखा जा सके, मगर वहां मौजूद सब गर्द-आलूद चीज़ों में से किसी एक का भी इस्तेमाल बुरा साबित हो सकता था। जख्म की परवाह ना करते हुए इसने एक बार फिर झुककर वहीं हाथ डाला जहां हाथ डालने पर जख्म आया था। कपड़ा इसके हाथ में आया और इसे महसूस हुआ कपड़े के नीचे कोई ठोस चीज़ मौजूद थी। कपड़े को एक तरफ हटाने के बाद इसने अंदाजे से ही इस ठोस चीज़ को हाथ से जानने की कोशिश की। शायद कोई रिलीफ है। हाथ के सिग्नल ने इसके जहन में ख्याल पैदा किया। इसने मजबूती से हाथ जमाया और ठोस शय बाजू पर जोर डालने से हाथ के शिकंजे में दबी ऊपर उठ गई। इसने लंबा गहरा सांस लेते हुए इस चीज़ को मेज़ की सतह पर रखा। मध्यम बल्ब इस चीज़ को रोशन कर रहा था। ये एक संगी सर था। साथ ने संगी सर का हाथ से रुख मोड़कर इसका चेहरा रोशनी की तरफ किया और इस पर नज़र पड़ते ही 2 कदम पीछे हट कर खड़ा हो गया। आह! इसने न जाने किस तकलीफ की शिद्दत के असर में आंखें बंद कर लीं। हथेली से बहता खून कलाई पर चलता बाजू तक पहुंच रहा था। खून के टपकते कतरे गर्द आलूद फर्श पर भी गिरकर जम रहे थे। यकीनन ये खून इसके शकन आलूद ट्राउज़र और शर्ट पर भी तहरीरी नमूने जाहिर कर रहा था, मगर इस वक्त शायद वो किसी दूसरी चीज़ की तरफ देखना नहीं चाहता था। मेज़ की सतह पर रखा संगी चेहरा इसके जहन से बाकी हर एहसास से ले उड़ा। शायद से संगी चेहरे के नक़ूश ज़ख्म से ज़्यादा तकलीफ दे रहे थे। इसने आंखें एक बार खोलने के बाद दोबारा मीची और फिर खोल कर इस चेहरे के खतूत देखने लगा। क्या मज़ीद भी कुछ देखना बाकी है? इसने खुद से सवाल किया। नहीं। फिर इसने खुद ही नफ़ी में सर हिलाया। सोए हुए महल का हर फर्द जाग चुका है, मुझ समेत। इसने निचला होंठ आदतन दांतों तले दबाते हुए जैसे इस संगी चेहरे को मुखातिब किया और फिर एक तंजिया मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। मेरा लहू भी इस चेहरे पर नजर आने लगा है। इसकी नज़र इस चेहरे को इस हिस्से पर रुक गई जहाँ इसके हाथ के निशान उभर आए थे। चेहरे के खतूत पर पड़ी हल्की गर्द पर खून आलूद हाथों के निशान। वो एक बार फिर तकलीफ की शिद्दत से आंखें मीचता पीछे मुड़ा। शायद अब वो मजीद इस कमरे में नहीं ठहर सकता था। पीछे मुड़कर इसने तेजी से बाहर से निकल जाना चाहा। निकलते निकलते इसकी नज़र खिड़की के करीब उल्टे पड़े एक कैनवास पर पड़ी। इसने आंखें सुकेड़ कर गौर से देखने की कोशिश की
और फिर आगे बढ़ गए इस उल्टे कैनवस को सीधा किया। वही पेंटिंग थी जिसकी तलाश में उस कमरे तक आया था। मिडनाइट इन हेवन नामी पेंटिंग पर ज़्यादा बालों वाले पुरुष थे। आड़े तिरछे सीधे उल्टे रंग फेर दिए गए थे। रंगों की इस बेतरतीब लकीरों के नीचे से कहीं कहीं दरवाजे दर्द ज़िरा में मुब्तला बच्चा जनती इस औरत का चेहरा नजर आ रहा था, जिसे अपने जहन में एक नाम महफूज कर चुका था। कुओं में बांस भी डल गए और वीरानों में शिकारी कुत्ते भी छोड़ दिए गए, फिर भी वली अहद सल्तनत का कुछ पता नहीं चला। राजी ने सोफे पर गिरकर हाँफने की अदाकारी करते हुए कहा, सो। जूनी ने हाथ में पकड़ा मैगजीन मेज पर रखते हुए इसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखा। अब बादशाह सलामत का नया फरमान क्या है? मनादी कराई जाए या फिर खुफिया वालों से रब्ता किया जाए? मनादी के जो ज़राए हैं ना जूनी, वो बादशाह सलामत की कारोबारी सल्तनत के लिए इंतहाई बुरे साबित हो सकते हैं। मनादी वो रकम लेकर करेंगे और चीदा चीदा मनहूस खबरें कारोबारी सल्तनत के बारे में मुफ्त नशर करेंगे। ये तो है। जूनी ने पुर सोच अंदाज में सर हिलाया। तोड़ती खबरें यानी ब्रेकिंग न्यूज़ की मद में जो कुछ टूटेगा, बॉस इसका मुतहमिल नहीं हो सकता है ना। इसने राजी की तरफ देखा। या अल्लाह, ये कैसी नौकरी है जहाँ कभी घर का साग और टिंडों का तस्मा बनाना पड़ता है और कभी वली अहद सल्तनत की तलाश में दश्त और सहरा में घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। राजी ने जूनी की बात का जवाब देने के बजाय दोनों बाजू हवा में बुलंद करके दुहाई दी, जूनी चलो भाग चलें। फिर वो पहलू बदल कर जूनी से मुखातिब हुआ, वहीं वापस दुबई चलें। चलकर शेख के घोड़ों की नालें जोड़ते हैं और कुत्तों को शैम्पू करते हैं दोबारा से। उफ़ो राजी, जूनी ने इसकी तजवीज़ को ज़रा बराबर भी घास न डालते हुए कहा, इतना ज़रा सा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते। सारा साल ऐश करने के बदले साल के आखिर में अगर तुम्हें टोयोटा कंपनी के टचेस और मर्सिडीज़ के घोड़े मालगल्ला की दश्त और गलियात के कोहसारों में दौड़ाने पड़ गए हैं तो बस तुम्हारे वाली बस हो गई और तुम दोबारा से दर्जा बे की नौकरी का सोचने लगे, जिसके इवज़ तुम्हें रहने को अस्तबल का कमरा और खर्चने की चंद 100 दरहम मिलते थे। तुफ है तुम पर भी राजी। इसने सर झटका, दोबारा से मेज़ पर रखा मैगजीन उठा लिया। काश तुम्हें इन कोनों और खुदरों की सैर करना पड़ती जहाँ बॉस के ख्याल में इसके सबूत के पाए जाने के इम्कानात हो सकते हैं, तो मैं तुम्हें पूछता, वो दर्जा बे का अस्तबल बेहतर है या ये दर्जा अलिफ की नक्सी? राजी ने इनकी नज़र डालते हुए कहा, ऊपर से वो तोन दिल वो इब्राहिम जो है, जिसकी जहनी हालत तो समझे पूरा शक है, वो साफ लगता है हमें चक्कर दे रहा है। इसे खूब मालूम है सात सुल्तान कहाँ छुपा बैठा है और वो हमें कभी गुजर खान के किसी बाबा के आस्थाने पर और कभी किसी रिकी मास्टर के पास ले जाता है। कहता है कि सात सुल्तान ऐसी ही जगहों पर जाया करते हैं। मुझे लगता है साफ चकमा दे रहा है, चाहे सात सुल्तान इसी के घर के किसी कोने खुदरे में बैठा हो। ऐसा लगता है तो इसका बिल्कुल सादा इलाज है। किसी वक्त बगैर इतला के जाए तुमको इसके घर, इससे बोलो तुम्हारे घर का नया इंटीरियर चेक करना है, इसलिए घर को तो घुमाओ अपना। जूनी ने मैगजीन से नजरें हटाकर मशवरा दिया, चूहे पकड़ने का पिंजरा ना हाथ में पकड़ लूँ इब्राहिम के घर जाने से पहले। राजी ने झल्ला कर कहा, और ऐसे बोलूँ, मुझे घर का हर कोना दिखाओ, मैं चूहे पकड़ने का माहिर हूँ। इंटीरियर देखने के साथ साथ तुम्हारे घर से सब चूहों का भी सफाया कर दूँगा। सब चूहों का नहीं, सिर्फ एक बेमुँह चूहे का जो 5 घर से निकले चूहों का सरदार है। जूनी ने फिलबदी जवाब दिया, हैं 5 घर से निकले चूहे? राजी ने अहमकों की तरह जूनी की तरफ देखा। वो कौन है? तुम और तुम्हारी कमज़ोर मालूमात। जूनी ने सर झटका, तुमने 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार वाली नज़म नहीं सुनी पढ़ रखी? नहीं। राजी ने सर हिलाया। मैं फिर तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि आखिर में जो अकेला चूहा रह जाता है वो शादी कर लेता है, जिससे बर्बादी की दास्तान मुकम्मल हो जाती है। जूनी हंस रही थी। अकेला चूहा शादी कर लेता है? राजी ने चौंक कर कहा। हाँ, जूनी ने सर हिलाया। बस फिर अकेला चूहा यानी बॉस शादी कर लेगा आखिर में। राजी को ख्याल सूझा। बॉस? जूनी ज़ोर से हंस दी। वो बेचारा जो बीवी के बगैर बरसों से तनहा ज़िंदगी गुजारते गुजारते इस उम्र को आन पहुँचा है कि कनपट्टी और मूँछों के बाल सफ़ेद होने को आए हैं। बात करो कोई करने वाली।
तुम क्या समझती हो बॉस के ये चंद बाल धूप में सफ़ेद हुए हैं क्या? राजी ने उसे आंख मारते हुए कहा। खैर, जिंदगी गुजारनी बड़ी रियासत का काम है ज़ुल्फ़िकार खानम। बॉस को बॉस ही समझो, तारीख को दुनिया दरवेश नहीं। मैं तो बॉस को जो समझना चाहती हूँ समझ ही लूँगी, लेकिन तुम अपनी फ़िक्र करो। जूनी ने दीवार पर सजे क्लॉक पर नज़र डालते हुए कहा। तुमको याद दिला रहा हूँ कि रात का निस्फ हो चुका है, यानी 12 बज चुके हैं और अगला दिन आ गया। अगला दिन नए कुएं, नए बांस, यूसुफ सानी वाह बाजार मिस्र में बिक रहा हो। तुम्हें कुएं बाहर खंगालने ही पड़ेंगे। वो मुस्कुराई। ओह मेरे खुदा! राजी ने अपने दोनों हाथों में सर को थामते हुए कहा। महानूर ने अपनी माँ की टांगों से लिपटी खारी की दुल्हन को दिलचस्पी से देखा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह रो रो कर इनसे पूछ रही थी, अम्मा आप कहाँ थीं अब तक? अम्मा आप मुझे मिली क्यों नहीं? महफिल में शरीक ख़वातीन का ख्याल था कि वो शादी के बाद माँ से दूर हो जाने की वजह से ऐसा कर रही थी, जबकि महानूर का अपना ख्याल था कि इस बात के पीछे ज़रूर कोई अहम राज छुपा था। ओह खारी, रे खारी! रज़िया ने दालान के दरवाजे पर खड़े होकर तमस्का उड़ाने के से अंदाज में आवाज़ लगाई। भाग के आ, तेरी वोटी बेहोश हो चली है। रज़िया के अंदाज से लग रहा था वो तमाशा बनाने के मूड में थी। खामोश रहो रज़िया, क्या बेवकूफ़ी है। मानू ने तेज़ी से उठकर इसे डांटा और दरवाजे से बाहर खड़े खारी की तरफ देखा, जो परेशानी के आलम में खड़ा इधर देख रहा था। कुछ नहीं हुआ खारी, इसे बस अपनी माँ को देखकर शायद जज्बाती हो गई। मानू ने नरमी से समझाया। महानूर बाजी, मैं इसीलिए परेशान था कि इसनू ड्रामे बड़े अच्छे लगते ने। खाली ने बेचारगी से कहा। उठ, 8 बजने वाला ड्रामा वो बड़े शौक से देखती है। मिर्ज़े साईं के घर वाली के साथ बैठ के तो मुझे वहम हुआ कहीं ड्रामे का कोई मंजर तो नहीं इधर दिखाने बैठ गई। खाली ने खजल होते हुए कहा, बेवकूफ़ हो तुम भी। वो कोई पागल है या कम अकल है? वो जो इतनी छोटी भी नहीं है कि बगैर सोचे ऐसी हरकत करे। मानू ने खाली को भी डांटा। जाओ तुम वो करो जो ताई जी ने तुम्हें करने को कहा है। महानूर की बात सुनकर खारी वहाँ से हट गया। महानूर रज़िया को घूरती हुई वापस दालान में आ गई। खारी के साथ साथ अपने खुलने घुटने पर रखे सादिया के सर को सहला रही थी। वो ख़वातीन के दरमियान जगह बनाती इनके करीब बैठ गई। आपकी बेटी शायद आपके लिए उदास थी। इसने भी नरमी से सादिया के बालों को छूते हुए कहा। जवाब में उन्होंने सर को अज़बात में हिलाया। खारी बता रहा था आपको साथ से कोई काम था। महानूर ने सादिया के शैम्पू हुए बालों को बेध्यानी में से जाते हुए पूछा। हाँ, उन्होंने सर हिलाया। मैंने खारी से कहा था कि मैं इस लड़के से मिलना चाहती हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे बता दें आप इससे क्यों मिलना चाहती हैं। मानूर ने कहा, बेटा बात भी तो अमानत होती है ना। उन्होंने नरमी से जवाब दिया। आप मुझे क्या पता कि जो बात मैंने इससे कहनी थी वो तुमसे कहनी चाहिए या नहीं। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन मानूर ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे यकीन है कि कोई अगर साथ के लिए संभाली बात मुझसे कर देगा तो साथ को बुरा नहीं लगेगा। तुम इसकी, उन्होंने से गौर से देखते हुए कहा, मैं इसकी कोई नहीं हूँ आंटी। मानू ने मुश्किल मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ज़बरदस्ती की ये मुस्कुराहट इसकी आंखों को भीगने से नहीं बचा पाई। मगर फिर भी उन्होंने अंगूठों के पोरों से अपनी आंखों की नमी को चुना। वो मुझ पर ट्रस्ट करता है। इसकी आवाज़ भुला गई। ट्रस्ट समझती हैं ना आप? इसने इसकी तरफ देखा। हाँ, वो ऐसे से सहला कर बोली, मैं समझती हूँ। उन्होंने महानूर की तरफ देखा। बस भरोसे की बात तुम कर रही हो वो किसी की ही पर क्या जा सकता है। अगर आप अगर दिल जाने की मुझ पर क्या जा सकता है तो ज़रूर कीजिएगा। मानू ने कहा और सर झुका लिया। इसका सास से ताल्लुक़ इतना बोधा और नामहसूस था, कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। साथ के सिलसिले में इस पर एतबार किया जा सकता था। एक नया तकलीफ दे एहसास इसके अंदर जागा और इससे लगने लगा जैसे दुनिया की सबसे मजलूम लड़की थी। अगर वो घड़ी फुर्सत का टाइम हो तो मेरे करीब खाने पर आना। मैं तुम्हें बात सुनाऊंगी जो मुझे इस बच्चे से करनी थी। कितनी देर वहाँ बैठे रहे। खाना खाने और ख़वातीन से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने के बाद वापस घर जाने से पहले खारी की सास ने इसके करीब आकर कहा था। वो जो महफिल के फ़ौरन बाद वापस जाने का तहिया कर बैठी थी, सब ख़वातीन के जाने के बाद भी फर्श पर बिछी चांदनियों में से एक पर गाँव तकिए से टेक लगाए बैठी रही।
ताई साबरा ने आखिरी मेहमान खातून को रुखसत करने के बाद दालान में आकर देखा। हल्के सुरमई रंग पर कासनी फूलों वाले प्रिंट की कमीज, सुरमई शलवार और दुपट्टे में मलबूस किसी तरह के भी मेकअप से बेनियाज सर झुकाए गहरी सोच में गुम महानूर पर इन्हें बेतहाशा प्यारा किया। सर पर ओढ़ दुपट्टा पंखे की हवा से सरक कर आधे सर तक ढलक गया था और कैचर में जकड़े बाल तेज रफ्तार पंखे की हवा से आज़ाद होकर उड़ रहे थे। चौधरी साहब को पैगाम भिजवाती हूँ कि गाड़ी तैयार करवा कर इधर ही भेज दें। उन्होंने उसके करीब बैठते हुए कहा, तुम ध्यान से खाना खा लो, मैं खाना लगवाती हूँ। इधर तो इन औरतों ने खूब गन मचाया। बेचारी बाजी मरियम ने कई नई नकोर चांदनियाँ भेजी थी, लेकर बेड़ा गर्क कर दिया। धोबी के पास भेजनी पड़ेंगी। उन्होंने एक ही सांस में 3 अलग अलग बातें करते हुए कहा। नहीं ताई जी, महानू ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। मैं कल सुबह चली जाऊंगी, अब तो निकलते निकलते देर हो जाएगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। वो सर हिलाते हुए बोली, हाय हाय महानूर, तुम्हारी आंखों के गिर तो सियाह हल्के पड़ गए पुत्र, रंग भी खराब हो रहा है। तुम्हारी माँ क्या कहेगी, मेरी बेटी का ये हाल करके भेजा। ताई ने, एक तो इधर गर्मी ज़्यादा है, उधर फार्म हाउस में तो 24 घंटे एसी चलते हैं, इधर मैंने एसी नहीं लगवाए। हमारी लकड़ी की छत है, मिट्टी की चिनाई दीवारों में, कमरे यूं भी ठंडे रहते हैं। मैं रात को सहन में सोती हूँ पंखा लगाकर। मुझे कमरों में नींद नहीं आती गर्मियों में, इसलिए मुझे एसी की ज़रूरत है ना आदत। इसकी ठंड में तो मेरे पैर अकड़ने लगते हैं। मुझे भी यहाँ गर्मी नहीं लगती ताई जी, और आपको वहम हो रहा है कि मेरी रंगत ख़राब हो रही है। मैं वैसी ही हूँ जैसी तब थी जब यहाँ आई थी। मानो ने नीची आवाज़ में जवाब दिया। ताई जी, खारी इधर से ही है, ये चला गया। इसने पूछा, चला गया? मुझे ये बता रहा था इसे बुखार चढ़ा हुआ था, जिसम झुलस रहा था, फिर भी उन्होंने क्योंकि मैंने बुलाया था आ गया। मुनीर को लगा इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। इसने मुझसे पूछ कर इसे वापस फार्म हाउस भिजवा दिया। ताई जी, सरदार चचा खारी को कहाँ से लाए थे? आपको उन्होंने कभी बताया? मानू ने अगला सवाल इनकी तरफ देखे बगैर पूछा। खारी को ज़िंदगी में शायद पहली मर्तबा महानूर ने ताई साबरा को नीची आवाज़ में बोलते सुना। खारी को वो बसों के अड्डे से उठा कर लाए थे, ये तो सब ही जानते हैं, मगर क्या सरदार चचा को खारी के आगे पीछे का कुछ पता ना चला? पता चला होता तो बेचारे गरीब इधर मेरे हाथों में ना पलता, जो भी जैसी भी इसकी माँ थी इसके हाथों में पलता। ताई साबरा ने कुछ याद करते हुए सर हिलाया। बस इतनी ही कहानी है खारी की ताई जी। इसने टटोलती नज़रों से ताई साबरा को देखा। मुझे तो इतनी ही पता है, बाकी अल्लाह जी जाने। ताई साबरा घुटनों पर हाथ रख कर उठते हुए बोली, अब पता नहीं ये सब कहाँ मर गए। बिरयानी में से बोटियाँ निकाल निकाल कर खा रही होंगी कमबख्तों। वो बोली, रज़िया की रानी, रज़िया नी रानी, वो आवाज़ें देती कमरे से बाहर निकल गई। साथ को अगर खारी की कहानी में कुछ चौंका देने वाली बात महसूस हुई थी तो मुझे क्यों नहीं हुई? और अगर वो इस अधूरी पेंटिंग्स को देखकर भागा था तो पेंटिंग्स तो वो इतने दिन से देख रहा होगा, फिर इसी दिन क्यों भागा? मानूर को जहन एक बार फिर मुमकिनात पर गौर करने लगा। और इब्राहिम के बगौल अगर वो वाकई इस्लामाबाद नहीं पहुंचा तो फिर वो कहाँ गया? इसका नंबर अभी तक क्यों बंद है? मेरे साथ तो चलो, वही सब कुछ पहले भी करता रहा है इब्राहिम, और अपने डैडी के साथ वैसा क्यों कर रहा है? तुमने मुझे किस मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया साद। मैं कैसी बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारती थी तुमसे पहले। इसने तसव्वुर में बैठी शबी को मुखातिब किया। तुमसे पहले और तुमसे बाद मेरी कहानी अगर लिखी जाए तो इसके सिर्फ 2 ही बाब होंगे, और देखो तो तुमने बाद में क्या क्या नहीं हुआ। वो सोचने पर आई तो सोच के धारे कहाँ कहाँ बह निकले। मेरा सेमेस्टर ज़ाया हो गया। अभी वापस जाकर मुझे मम्मी और पापा का सामना करना है। मेरे पास ना कोई जवाब है ना दलील। मम्मी मुझसे इतनी नाराज़ हैं कि खुद फ़ोन करती हैं, ना मेरे फ़ोन करने पर ढंग से बात करती हैं। बाबा नाराज़ से टून में कहते हैं, तुमने बुरा किया महानूर जो अपनी मम्मी को नाराज़ कर दिया। सलमान कहता है मैं हमेशा सेमेस्टर मिस करने की ख्वाहिश करता था और मम्मी के खौफ से नहीं करता था। तुमने मम्मी के खौफ की हद पार कर ली। तुम्हें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। शाहबानो ने सेमेस्टर मुकम्मल कर लिया। वो अपनी कज़न से मंगनी करवा चुकी।
वो अपनी नानी के पास जर्मनी जाने की तैयारियों में मगन है और मैं कहीं भी नहीं खड़ी। मैं तुम्हारे शराब के पीछे भाग रही हूँ। बस जानती हूँ तुम मेरी रसाई से कितनी दूर हो, मेरी पहुँच से बाहर। फिर भी मैं हूँ कि इस वक्त के इंतज़ार में सारे नुकसान किए जा रही हूँ कि हाथ पर बढ़ाऊँ और तुम्हें छू लूँ। क्या मैं नहीं जानती कि तुम बादल हो, पानी नहीं, जिसे हाथ बढ़ाकर छूने की तमन्ना सिर्फ ऊंचाई पर जाकर ही पूरी होती है और बुलंदियों पर मैं नहीं जा सारा खान रहती है। इसकी जलती आंखें एक मरतबा फिर भीगने लगीं। ये है मेरी कहानी। तुम्हारे बाद सात सुल्तान मेले का साईं कहता था। इसकी आवाज़ में सोच इश्क ने पैदा किया। मैंने पूछा ना, इसने बताया कि किसके इश्क ने इन सवाल पूछा। इन कहे जवाब का मुंतज़िर ही रहेगा। सैयदपुर फेस्टिवल का सिंगर कहता था कि इसे मोहब्बत वहाँ मिली जहाँ पर मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो जगह कौन सी थी? मोहब्बत जो मिली वो किसकी मोहब्बत थी? सवाल बेअंत हैं, मगर जवाब में जामिद खामोशी। मैं किससे पूछूं, किधर का रुख करूं? तुमने मुझे किस मुश्किल और तवील रास्ते का मुसाफिर बना दिया। साथ ना रास्ता छोड़ने को दिल मानता है और ना मंजिल का कोई निशान है। इसने सोते जागते जहन को होशियार करने की कोशिश की और नाकाम होते हुए थक कर उठ गई। रानी, तुम्हें मौलवी साहब के घर का रास्ता आता है? कमरे से बाहर निकलकर इसने ताई साबरा को एक खास मुलाजमत से पूछा। मौलवी साहब जो खारी का ससुरा है वो? रानी ने बर्तन धोना छोड़कर इसकी तरफ रुख किया। जी वही आता है रास्ता। क्यों? मुझे इसके घर जाना है। अच्छा जी, रानी खुश होते हुए बोली और नल से पानी के धार के नीचे हाथ धोने लगी। हाथ धोकर दुपट्टे से खुश्क करने के बाद इसने चादर सर पर रखी और खड़ी हो गई। चलो चलते हैं मौलवी साहब के घर। रास्ते में ट्यूबवेल भी आता है, ठंडे पानी से खेलेंगे और खीरे टमाटर तोड़ेंगे। रानी को बाहर जाने के तसव्वुर ही से खुशी हो रही थी। ताई जी को बता दिया। मानूर ने कहा, नहीं, वो तो शुगर का टीका लगाकर बिरयानी खाने के बाद सो भी गईं। उन्होंने इन्हें जगाना असर के वक्त से पहले। इतनी देर में हमने मौलवी साहब के घर से होकर आ भी जाना है। रानी ने लापरवाही से कहा। अच्छा ऐसा करो, मौलवी साहब के घर वालों के लिए थोड़ा खाना और फल साथ ले लो। हम कहेंगे कि हम खाना देने आए हैं। मानूर को ख्याल आया, हम मौलवी साहब की जो बीवी हैं वो बच्ची ही वो बड़ी ही नक चढ़ी है। रानी ने बर्तनों के अंबार के दरमियान से बाहर निकलते हुए कहा। हमारी बीबी जी ने बड़ा कहा बीबी के साथ खाना बांध दो, पर जी वो नहीं मानी। चलो फिर तो और भी अच्छा है, तुम फटाफट उनके लिए खाना बांध कर ले आओ। मानू ने इसकी जुबान में जवाब दिया। 20 मिनट बाद महानूर दुपट्टे में चेहरा छुपाए रानी के हमरा खेतों के दरमियान बनी पगडंडियों पर कदम जमाती मौलवी के घर की तरफ जा रही थी। आप अभी तक जाग रही हैं? वो स्टूडियो से निकल कर वापस लाउंज में आया तो मेज़बान को हनूज इसी पोजीशन में सोफे पर पाँव चढ़ाए बैठे देखा जैसे छोड़ कर गया था। हाँ, वो जैसे किसी गहरी सोच से बाहर निकलते हुए बोली। आज अरसे के बाद मैंने ध्यान लगाकर घड़ी की टिक टिक सुनी है, वरना मैं समझती थी दुनिया बेआवाज़ क्लॉक बनाने लगी है। ओह, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, आप मेरी वजह से बेआराम हो रही हैं। इसने हाथ में पकड़ा कैनवस एक मेज़ की टांग के साथ टिकाकर फर्श पर रखते हुए कहा और तेज़ रोशनी में अपना हाथ नज़रों के सामने फैलाकर देखने लगा। तुम्हारे आने से अरसा बाद एहसास हुआ कि जब कोई आता है तो कैसा लगता है। लिहाजा ज़हमत, तरद्दुद और बेआरामी जैसी बातें मत करना। इसे जवाब मिला। अरे तुम्हारा हाथ तो ज़ख्मी है। फिर इसकी नज़र इसके हाथ पर पड़ गई और वह सोफे से उतर के इसके करीब आ गई। उफ़ो, खून तो अभी तक बह रहा है। कितना खून जम भी गया तुम्हारी कलाई पर। ज़ख्म गहरा है और तुम कितने सुकून से इसे देख रहे हो। मेज़बान के चेहरे पर शराब झलका। मैं ये अंदाज़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कलाई काट कर ख़ुदकशी करने वाले कितनी देर खून बहने और इसके बहने के नतीजे में मौत का इंतज़ार करते होंगे। वो बदस्तूर अपने हाथ पर नज़रें जमाए बोला। इस दौरान इनका कभी वापस ज़िंदगी की तरफ दौड़ आने को जी तो चाहता होगा, है ना? इसने इसे मुस्कुरा कर देखा। बेवकूफ़ लड़के, चलो फ़ौरन ज़ख्म को धो कर आओ,
मैं ड्रेसिंग का सामान लेकर आती हूँ, वो दांत पीसते हुए बोली। वो इसी तरह मुस्कुराती नज़र से उसे देखता किचन के सिंक की तरफ मुड़ गया। एंटी जर्म्स हैंड वाश इसने संग पर रखे हाथ धोने के महलूल की बोतल पर चिपके मालूमाती कागज़ पर छुपे अल्फाज को पढ़ा। नहाने का साबुन, हाथ धोने वाला साबुन, लीरे धोने ते भांडे धोने का साबुन। इसे नूर फातमा याद आ गई जिसने कहा था इसके पास हर तरह की धुलाई के लिए एक ही साबुन था, और तेज़ और मखसूस बू वाले इस साबुन से हैंडपम्प के पानी के नीचे हाथ मुंह धोते हुए इसे जाने क्या महसूस हुआ था। महसूसात अपनी जुजियात के साथ इसके जहन में गर्दिश करने लगे। एक सफ़र और कितने पड़ाव। जरासीम कश हाथ धोने के महलूल से अपना जख्मी हाथ धोते हुए इसने सोचा और धुले हुए हाथ की तरफ देखा। जख्म 6 इंच की लकीर की मानिंद कलाई से अंगूठे तक फैला हुआ था। शायद कोई नाजुक रग कट गई थी। जब भी अच्छी तरह ठंडे पानी में धुलने के बाद भी खून भल भल बह रहा था। चलो इधर आओ, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूं। मेज़बान फर्स्ट एड बॉक्स उठाए वापस लाउंज में आई। वैसे तो इस जख्म पर टाँके लगने चाहिए। नज़दीक का चश्मा आंखों पर जमा कर इसने जख्म का जायज़ा लिया। इधर एक क्लिनिक है जहाँ मेरी दोस्त बैठी होगी इस वक्त नाइट ड्यूटी पर। इसके पास चलें तुम्हारा हाथ सिलवाने। इसने चश्मे के ऊपर से नज़रें हटाकर उसे देखा। हाथ ही सिलवाएंगी ना, होठ तो नहीं। वो इसके सामने से फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर खोलते हुए बोला, मैं इस बैंडेज को इस महलूल पर भिगो कर जख्म पर रख दें, और अगर पट्टी बांधनी आती है तो कस कर बांध दीजिए, खून बहना बंद हो जाएगा। इसने कागज का पैकेट निकाल कर इसे पकड़ाते हुए कहा, मैं चाह नहीं रही थी कि सर तुम इस कमरे में जाओ, मगर तुम्हारी मर्जी, और मुंह देकर खामोश हो गई। वो पट्टी बांधते हुए बोली, वहाँ जो जाता है जख्म ही खा कर आता है। पट्टी की गिरहा बांधते हुए वो बड़बड़ाई, दिल पर, रूह बरपा, जिस्म पर। वो बिला इरादा बोला, शायद सब पर। इसने कहा और दवा और पट्टी के पैकेट वापस बॉक्स में रखने लगी। तो और ये क्या है? इसने मेज़ की टांग से लगे कैनवस की तरफ देखा। ये पेंटिंग है जो मुझे आपसे ख़रीदनी है। साथ ने हाथ के दर्द की शिद्दत से आंखें बंद करने के बाद खोलते हुए कहा, नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है। वो सख्त लहजे में बोली, फिर गिफ्ट कर दें। इसने बेसाख्ता कहा। गिफ्ट? बॉक्स उठाकर दूसरे कमरे की तरफ जाते जाते इसने मुड़कर इसकी तरफ देखा। मैं गिफ्ट नहीं, दान कर चुकी। वो लम्हा भर को रुकी, फिर बोली, अपनी मिडनाइट इन हेवन। वो तेज़ी से दूसरे कमरे में घुस गई। वाक़यात के उन डांडे यूँ अचानक मगर इतनी खूबी से आकर आपकी आंखों के नज़रों के सामने जड़ने लगे तो नज़रें चुराना मुमकिन है क्या? साद ने खुद से सवाल किया। नहीं, ये ऐसे नहीं, वैसा ही होगा। नहीं, ये नज़र का धोखा और महज इत्तफाक है। ये सब लघु और बेमानी बातें हैं। इसने अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को दबाते हुए सोचा और थके हुए जिस्म को सोफे पर गिरा दिया। ये पेन किलर लो और साथ में दूध का गिलास, और जाकर आराम करो। अब तुम चेहरे से सब बहुत थके हुए आराम नज़र आ रहे हो। दूध के गिलास की ट्रे में 2 गोलियां और साथ ही मुफ्त मशवरा सामने आया। हाँ, ये ठीक है, मैं आराम करता हूँ। इसने चुपचाप दवा मुंह में रखी और नीम गर्म दूध के घूंट हलक से उतारने लगा। तुम्हारे बाल उलझे हुए हैं और गर्द आलूद भी। एक हाथ इसके बालों में आकर ठहरा और इसके गिर झाड़ने लगा। ये क्यों और कब से खुद को ख्वार कर रहे हो? एक पुरसुकून और लतीफ़ एहसास इसके रगों पे में उतरा। वो तपती धूप में चलता जैसे एकदम किसी शतावर दरख्त के ठंडे गहरे साए में आ गया था। सारी दुनिया में महज इस एहसास को पाने की सही के जुर्म ही में तो जला वतन हुआ था। इसके दिल में ख्याल आया। इसी दम वो हाथ इसके बालों से अलग हो गया और वो वापस दश्त नार में पहुंच गया। सो जाओ जाकर, नींद तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। लहजा और अल्फाज दोनों ही सपाट हुए और रवायती भी। इसने सर हिलाया और अपनी जगह से उठकर इस कमरे में पहुंच गया जहाँ बेड पर सफ़ेद चादरें उठाकर एक आरामदेह मेहमान खाना बना दिया गया था। मौलवी की बेटी को देखा था आपने? महानूर बाजी कितने फफड़े खुला रही थी आज ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते। रानी ने से थक कितनी ही बातों के दौरान एक बात ये भी कही थी, मैंने सुना है इस लड़की ने खारी से पसंद की शादी की है। इससे मिलने फार्म हाउस जाया करती थी। बड़ी कोई जिगरे वाली लड़की है महानूर बाजी। फार्म हाउस जाने से पहले बड़े बड़े दिल वालों को पसीना आ जाता है। जगह जगह तो इधर बंदूकों वाले रहते हैं।
अरे नहीं, नहीं, गलत है ये लड़की। वो लड़की तो शक्ल से इतनी इनोसेंट लगती है, मानूर ने कहा। और खारी, तौबा करो, वो बेचारा कहाँ ऐसा लड़का लगता है जो किसी लड़की से छुप छुप कर मिले। इधर गांव के लड़के लड़कियों का आपको पता नहीं जी, बड़े चालाक होते हैं। आप खारी को वोटी है, बंदा इससे पूछे कि तुम इतनी माँ से मिलने के लिए उदास थी तो क्या माँ के साथ क्यों नहीं गई। खारी बेचारे को बुखार चढ़ा रखा है, इसको कहती है वापस चलो वापस चलो, इसको भी साथ लेकर ही टल गई। रानी ने इसकी बात को जवाब में कोई बात नहीं की। जी, आ गया मौलवी साहब का घर। एक कशादा मैदान के सामने बने मुख्तसर से घर के रंग साड़े दरवाजे के दहलीज पर कदम रखते हुए रानी ने कहा। मानू ने सर घुमाकर इस घर की तरफ देखा। इसे एहसास हुआ कि जो कुछ मौलवी साहब की बीवी ने आज महफिल में कहा, ये घर इन अल्फाज की अमली तस्वीर था। इट्स ओके राजी, थैंक यू सो मच। आज हम अपना मामूल का काम करेंगे। बॉस ने सुबह 8 बजे राजी को इतला इतला दी। सुबह सुबह का इसका फ़ोन राजी के सुकून का सांस लिया था। ग्रॉसरी एडमिनिस्ट्रेशन कर लें आज सर, इसने खुशी से छलांगे मारते हुए दिल पर काबू पाते हुए बेतुकी सी बात की। जो दिल चाहता है करो। मैं जानता हूँ गुज़िश्ता दिनों से मैंने तुम्हें खासे टफ टास्क दे रखे थे। नहीं सर, आपकी ख्वाहिश हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, राजी ने मुअद्दिब लहजे में कहा। दूसरी जानिब फ़ोन बंद हो जाने पर वो नाचता हुआ जूनी की तरफ दौड़ा। इस रोज़ दोनों अपनी मर्जी से हर वो काम कर सकते थे जो वो करना चाहते थे। मैं जितना इसको जानता हूँ बिल्कुल इसके मुताबिक मेरा वजदान कहता है कि ये वो महफूज है और यहीं कहीं है। इब्राहिम ने बिलाल सुल्तान के सामने बैठते हुए कहा। हाँ, इसकी गाड़ी का जायज़ा लेने के बाद मेरा भी यही ख्याल है। इसे फौरी तौर पर कोई ख़तरा लाहक है और ना ही पिछले दिनों वो किसी हादसे का शिकार हुआ है, उन्होंने पुरसुकून अंदाज में कहा। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैंने अपनी घबराहट में तुम सबको परेशान किया, मगर शायद तुम बेटे के लिए एक बाप के जज्बात को इस वक्त ज़्यादा बेहतर समझ सको जब तुम खुद बाप बन जाओगे। जी बिल्कुल, इब्राहिम ने एहतरामन सर झुकाया। देखो तुम इसको कोई गैर मामूली एक्टिविटी, मामूल से हट कर किसी के ताल्लुक किसी ऐसी जगह पर इसका जाना जहाँ के बारे में मैं ना सोच सकता हूँ, मुझसे नहीं छुपाओगे। उन्होंने इब्राहिम की तरफ देखा। मेरा ख्याल है तुम मेरे जज्बात को समझ सकते हो। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, वो बोला और तेज़ी से उठ गया। अब मैं चलूँ? हाँ जाओ, उन्होंने सर हिलाया। इब्राहिम के जाने के बाद उन्होंने अपनी थकी हुई आंखें मूंद लीं। तुम्हारे हाथ के जख्म की सूरत हाल क्या है अब? अगले रोज़ 11 बजे जब वो इस कमरे से बरामद हुआ तो मेज़बान मेज़ पर नाश्ते के बर्तन लगा रही थी। और हाँ, अब तुम अच्छे कुछ कुछ इंसान लग रहे हो, उन्होंने रुक कर झुमरा उछाला। मैंने गुसल किया है और कपड़ों का वाहिद जोड़ा जो मैं एक छोटे बैग में साथ लाया था जेब तन कर लिया। वो मुस्कुराया। मैं जानता हूँ मेरी शेप बढ़ी हुई है और चेहरे की वहशत भी गई नहीं, लिहाजा मैं कुछ कुछ इंसान लग रहा हूँ, पूरा इंसान नहीं। मैं इम्प्रेस नहीं हुई, इसने सफ़ेद जाजिब कपड़े से खाने की मेज़ की कवर पर गिरा पानी खुश करते हुए कहा। तुम्हारी उम्र के अक्सर लड़के यूं ही ज़रा सी बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और शेप बढ़ा लेते हैं वगैरह, तो आम सी बात है बाबा। हाँ हाँ हाँ, वो कई दिनों बाद बेख्तियार हंस दिया। मेरी शेव इसलिए बढ़ी हुई है मैम कि मैं अपनी शेविंग किट नहीं लाया, वरना मेरी फ्रस्ट्रेशन शेव पर नहीं निकला करती। फिर ठीक है, इसने जाजिब कपड़ा सिंह में झाड़ते हुए कहा और खाने की मेज़ के करीब वापस आई। लो नाश्ता कर लो, इसने एक कुर्सी बाहर निकालते हुए कहा। ये एक भरपूर नाश्ता था और आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, साद ने नाश्ते के दौरान छा जाने वाली खामोशी चाय का आखिरी घूंट पीने के बाद तोड़ी। अब अगर आप दोबारा मेरे मरहम पट्टी कर दें तो मैं ममनून होऊंगा। इसके बाद मुझे और किसी से मिलने जाना है। ज़रूर, इसने नैपकिन से हाथ पोंछे और बर्तन समेट कर सिंक में रखने के बाद इसकी मरहम पट्टी में मसरूफ़ हुई। ज़ख्म गहरा है, तुम्हें इसे किसी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। पट्टी करने के बाद इसने साथ की तरफ देखा। फिर वक्त तो मुझे डॉक्टर से ज़्यादा एक अदद और ऑर्गेनेटर हैकर की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं वक्ती तौर पर रुखसत होता हूँ। फिर इसने सर उठाकर मेज़बान की जानिब देखा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिन आपके यहाँ ही ठिकाना कर लूँ। पूछने की ज़रूरत तो नहीं थी, मगर पूछ लिया तो मेरा जवाब है कि शौक़ से
चलें, फिर मैं वक्ती रुख्सत लेता हूँ। थैंक यू सो मच फिज़ा मैम। गाड़ी चाहिए तो रुक। की रिंग उधर होल्डर पर लटका है। ये एक इंसानी अनायत होगी। वो मुस्कुराया। की रिंग उतार कर बाहर निकल गया। फ़कीर लिबास बदल रहा है। फ़कीर को थोड़ा वक्त हो। अख्तर की झोंपड़ी से बाहर ही वो लड़का मिट्टी के तेल के चूल्हे पर बड़ा सा बर्तन चढ़ाए कुछ उबाल रहा था। तुम अभी तक इधर ही हो? भागे नहीं। वो घुटनों के बल इस लड़के के सामने बैठ गया। पहले वाला बालका तो बहुत जल्दी मायूस हो गया था। मुझे रोशनी तो नहीं मिली अभी तक, मगर दूर कहीं कोई तारा ज़रूर चमकता दिखाई देता है। लड़के ने एक लंबी डोई बर्तन में अपने उबलते पानी में चलाई और डोई की मदद से एक उबलता आलू बाहर निकालकर हाथ से इसकी नरमी पर सख्ती का अंदाज़ा लगाने लगा। चाहे वो तारा साईं का शोभदा हो और करीब जाओ तो पता चले चाइना की ईजाद करदा मसनूई रोशनी का कोई स्टाइल है। इसने लड़के को तंग करने की खातिर कहा, जब बंदे का दिल ही चाइना का खिलौना बन जाए तो तारे को कुछ कहना बाबूजी। लड़का फलसफियाने अंदाज में बोला और सर पर रखी नायलॉन की सब्ज टोपी को झाड़ने लगा। सब कुछ मसनूई हो गया है बाबूजी। तो उम्मीद के तारे चाहे सस्ते हों, क्रिस्टल से बने निकलें, चाहे स्टील के इनकी कशिश से कम इस वक्त तक तो कायम रहती है ना, जब तक हाथ नहीं लगते। बस फिर खाए जाओ। आलू उबाल कर वो उठा कुटिया के दरवाजे की तरफ चल दिया। मुझे पता था आजकल मैं इधर का चक्कर लगाओगे। अख्तर इसे देखकर मुस्कुराया और गुड़गुड़ी में तांबे का बारीक तार फेरने लगा। आपके कशिफ की करामात हैं। वो अख्तर के सामने नीचे चटाई पर बैठ गया। ओ बाबूजी, क्यों फ़कीर को गुनाहगार करते हो? अख्तर ने गुड़गुड़ी पीछे करते हुए कहा। कशफ न्याज की तरह नहीं बनते जो हर इंसान को होने लगे। मेरी तरह वीराने में फ़कीरी का चोला पहन कर बैठ जाओ। अच्छा तो फिर आपको अल्हाम होता है। छठी हिस्स का करिश्मा है जो आपको कबल अज़ वक्त आने वाले वाक़यात की खबर रहती है। मेरी तो इस झोपड़ी का तिनका तिनका मारा आपके हमज़ाद ने, जैसे आप कोई नन्हा सा मच्छर हो जो इन तिनकों में छुपा बैठा है। फिर अख्तर के लहजे में शिकवा उभरा। ओह, इसके होंठ नीम दायरे की शक्ल में सिमटे। मेरी वजह से आप तंग हुए। बंदा बंदे की वजह से परेशान होता है। अख्तर आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए बोला, अब बताओ, क्यों फ़ौजें पीछे लगाई हुई हैं? क्यों तिलस्मी चादर ओढ़ रखी है? माजरा क्या है? सुना है मवासलाती राब्ते भी बंद हैं। आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी तो मिल गई है, मगर फ़ोन नहीं मिल रहा। वाह साईं जी, आपको तो खूब खबरें हैं। वो मुस्कुराया। अख्तर ने अपनी सुर्ख सुर्ख आँखें खोल कर इसे देखा और मुस्कुराया। बात वही है साईं जी, इसने कहना शुरू किया, और अपनी बात करते हुए इसकी नज़र अचानक झोंपड़ी की दीवार पर गड़ी वाहिद खूंटी पर लटके इन कपड़ों पर पड़ी, जिनके मुतालिक शायद वो बालका कह रहा था। फ़कीर लिबास तब्दील कर रहा है।